أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بیسر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی نرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں باواز بلند ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل کی گہرائی سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو کہ اس پاکیزہ اجلاس میں آپ تشریف لائے. پھر جناب فیضان صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے دوستوں احباب کو جنہوں نے ان کی شادی خانہ آبادی کے اس شب افسر پر پیارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفل سجائی. بڑا دل بڑا جگر چاہیے اس طرح کی محفلیں سجانے کو. شیطان بہت کوششیں کرتا ہے، ہمتیں توڑتا ہے، حوصلوں پہ یورش یلغار کرتا ہے، مگر شیطان کی گردن پکڑ کے مروڑ دیا آپ نے اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ نبی کے غلام. آپ نے بڑی محبت سے اب تک کا جلسہ سنا. شاہکار ترنم عقیل الرحمان مراد آبادی کی طرح میرے پاس آواز نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس حال میں بھی مجھے محبت سے سنیں. آواز نہیں ہے، کھنکتا لہجہ نہیں ہے، اور نہ چمکتی شاعری ناظم اجلاس انصار القادری صاحب جیسی ہے. مگر آپ مجھے لگ رہا ہے لہجے پہ ہی مرتے ہو، کیونکہ انصار القادری نے اتنے اچھے اچھے اشعار کہہ دیے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اور سارے اشعار اپنے ان کے پاس سارا مال ان کی فیکٹری کا ہے. یہ تو کہہ رہے تھے جگہ ہماری ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جگہ ان کی ہے. اب ہمارے پاس نہ شاعری ہے، نہ لہجے ہیں، نہ آواز ہے، اور نہ مفتی زبیر عالم نعیمی جیسے نقطے. مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں آپ سے عرض کریں گے. قاری مولانا انس رحمان نے بہت اچھی منظومات آپ کو سنائی ہیں، اور اگر ٹائم بچا تو انشاءاللہ ایک ایک نعت شریف پھر سنیے گا بزرگوں سے. امام صاحب ابھی تک جلوگر ہیں، بیچ میں جانے کی باتیں کر رہے تھے مگر رک گئے. اب یہ ہماری محبت میں رکے، حضور کی محبت میں رکے، یا دولہ کی محبت میں رکے، یا مولانا طارق صاحب.
मगर जैसे भी रुके रुक गए। अल्लाह इनके इकबाल में। हम ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, इसी कम टाइम में ही मोहब्बत का इजहार करते रहो और दूर से सुभान अल्लाह कहते रहो। और ज्यादा गरजना हमारी आदत में नहीं है, ऐसी तकरीर होती है। रात हमने तकरीर कर दी ऐसी, क्या बताएं वहां की मंदिर कशी कैसे करेगा। मुफ्ती जुबैर आलम नईमी ने अभी ये वकील भी हैं और एक गांव के प्रधान भी हैं, ये प्रधान जी हैं ये, और वकील भी हैं और मुफ्ती भी हैं। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का जिक्र किया, मगर आप जोश में नहीं आए। जबकि आज की मजलिस में अहम उन्सुर हुजूर की माँ और हुजूर के अब्बाए पाक का ही जिक्र है। अब पहले कुरान शरीफ की एक आयत सुन लो, फिर तर्जमा सुन लो, उसके बाद फिर आगे बात करें। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। इरशाद फरमाता है मेरा मौला है मेरे हबीब, इन लोगों से कह दो कि अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत इन पे उतरे तो ये खुश हो जाएगा। नहीं रही सकत तुम्हारे अंदर, सुभान अल्लाह बोल दो यार, जोर से कहो। कितनी प्यारी बात हो गई। हमें अल्लाह ताला ने देखा, हजरत इमाम साहब तुम्हें क्लियर इशारे नहीं बल्कि क्लियर कह रहे हैं, तो भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। पहली बात तो ये मालूम हुई कि खुशी मनाने का हुक्म अल्लाह की तरफ से है। कोई नेमत मिल जाए, दौलत मिल जाए, अल्लाह की रहमतों में ना आ जाओ तो खुश हो जाया करो। मगर ये खुशी कैसे होगी, ये एक सवाल है। गाना गा के, तबले ताशे बजा के, ढोलक बजा के, जनाब वाला बेहया औरतों को नचा के और जनाब वाला डीजे बाजे पे तबले ताशे पे डांस करके ऐसे खुशी होगी, या खुशी का कोई और स्वरूप है? तो कुरान और हदीस से खुशियों का जो स्वरूप साबित होता है वो ये कि लोगों जब तुम खुश हुआ करो तो मदीने वाले हबीब का जिक्र कर लिया करो। शादी का मौका तो बड़ा खास मौका है। यहाँ तो हमारे बुजुर्गों से ये चलन चला आ रहा है, जनाब वाला बुजुर्गों से सब शादी होती थी। देख लो तुम पूरी तारीख का जायजा ले लो, जितने भी हमारे नेकोकार पारसा परहेजगार बुजुर्ग गुजरे हैं, बात समझे, उन सबका यही चलन रहा। लड़की की शादी कर दी तो नबी का चर्चा, लड़के की शादी कर दी तो नबी का चर्चा। घरों में मीलादों का एक चलन रहा है, चाहे लड़की की शादी से पहले या लड़के की शादी के बाद, जब भी किया हुजूर का जिक्र किया। ये हमारे असलाफ का तरीका रहा है। अच्छा, हुजूर का चर्चा करते क्यों है शादी के मौके पे? अब शैतान तो चाहते नहीं कि हुजूर का जिक्र हो। शादी के मौके पे खास तौर से आप मुझे बताओ कि हुजूर का चर्चा क्यों करते हैं? बताओ। इसलिए करते हैं कि पूरी दुनिया के दूल्हा अगर कोई है तो हमारे नबी हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आई दूल्हा साहब? पूरी दुनिया के दूल्हा न फैजान है न इमरान है, तवज्जो है। सारे जमाने की, सारी दुनिया के जमीन और आसमान के, बागों के, बहारों के, नजारों के, इन सितारों के और सैयारों के और पूरी दुनिया के मज़ाहिर फितरत के अगर कोई दूल्हा है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सलामत रहो। तुम्हारी उम्रों में बरकतें हों और तुम्हारी शादियों में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए।
देखो एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक बात तुम्हारी समझ में आई। हुजूर है दूल्हा, न फैजान न एहसान न अरमान है न इमरान है, हुजूर है दूल्हा, न अकीलुर रहमान न नसुर रहमान। कौन है हुजूर है दूल्हा? जोर से बोलो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, अरे दूल्हा के लिए तो है जो कुछ है, सारी बहार सारे बाग दूल्हा की फरमाते हैं बरेली वाले, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। और सच्चाई ये है कि बने दो जहां, जमीन उनके लिए बनाई गई, संसार की रचना उनके लिए की गई जनाबे वाला, ये मज़ाहिर फितरत उनके लिए पैदा किए गए, तो ज़माने के दूल्हा वही हैं। और जनाबे वाला ये देखो, ज़मीन बराती, आसमान बराती, चांद बराती, ये चंदा बराती, ये सूरज बराती, ये लैलो नहार बराती, ये जनाब वाला शब और रोज़ बराती। वो खुदा की कसम, ये वक्त, ये बाग और ये उसकी बहार है, ये फूल, ये इसकी लताफत है, ये नज़ाकत है, ये गुंचे, ये सारे ज़माने के नज़ारे जनाबे वाला, ये सैयारे। अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाराती हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले, दूल्हा से इतना कह दो, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। अरे दूल्हा कौन है जी? शादी के मौके पर उस प्यारे दूल्हा का जिक्र करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, उससे जनाबे वाला हयात, उससे खुदा की कसम जगमगाहट, उससे और संसार की रानाई उस दूल्हा की वजह से। अब आप ये देखो, एक बड़े मजे की बात बताऊं अगर इजाजत दो तो। इरशाद इरशाद ताहू। कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी आज तक? हमने भी नहीं देखी, हमारी भी उम्र हो गई, उनकी भी उम्र हो गई, अकीलुर रहमान साहब की, और वो चचा बैठे, ये ताऊ बैठे, पूछ के देख लो पूरी जिंदगी में कोई बारात बगैर दूल्हा के, और अगर देखी होगी बगैर दूल्हा के तो फैजान भाई पिटती हुई देखी होगी। दूल्हे को लेके आओ, दूल्हा का सुबह को इंशाअल्लाह। मैं एक बात कह रहा हूं, मेरी बात नहीं समझी, मैं ये कह रहा हूं कि कोई बारात बगैर दूल्हा के होती नहीं है, और अगर कोई बारात बगैर दूल्हा के दिखाई दी तो वो पिटती हुई दिखाई दी। अब इस बात पे मैं जो एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, उस बात को नोट करने की जरूरत है। इसका ताल्लुक अकीदे से है, इसका ताल्लुक अकीदे से है। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई? जब इतना समझ में आ गया कि कोई बारात बगैर दूल्हा के नहीं है और जनाबे वाला, और अगर बगैर दूल्हा के है तो पिटती हुई है, मगर हम यहाँ देख रहे हैं पूरी बारात मौजूद है, जमीन मौजूद है, आसमान मौजूद है, संसार मौजूद है, पूरा ज़माना मौजूद है, बाग मौजूद, मौजूद, ज़माना मौजूद है, ये चंदा मौजूद, वो सूरज मौजूद, सारी बारात मौजूद है। इसका मतलब खुदा की कसम, इस बारात का दूल्हा भी मौजूद है। अगर जनाबे वाला दूल्हा ना होता और बारात होती तो पिट गई होती, मगर बजाय पिटने के चंदा जनाबे वाला रेस्पेक्टेबल है। सूरज को देखो, रोजाना टाइम पे निकल के आता है, इन हवाओं को देखो कैसे मचल रही हैं, इन फूलों को देखो कैसे महक रहे हैं, इस जमाने को देखो कैसे अपनी चाल पे है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, बारात पिट नहीं रही है, इसका मतलब दूल्हा मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी दुनिया का मौजूद होना और सलामत होना इस बात को दर्शाता है कि आमिना का लाल कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, मेरा नबी कल भी सलामत था और आज भी।
जी बहुत खूब माशाल्लाह। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मर के मिट्टी में मिल गए, मर के मिट्टी में मिल गए। वो और उनके डालडा छाप नबी हमारे मुस्तफा तो जनाब वाला कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कल भी सलामत थे और आज भी सलामत हैं। अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि नबी सलामत हैं, इसकी दलील क्या है, तो तुम सीधे कहो हम ज्यादा पढ़े हुए तो हैं नहीं। तुम सीधे कहो कि हम ज्यादा पढ़े हुए तो है नहीं। तो फिर नबी सलामत है, ये नबी मौजूद है, तो इसकी दलील क्या है? क्या कहोगे? कहोगे हमें नहीं मालूम, लंबी बात। हम तो बस इतना जानते हैं कि ये जमीन आसमान सलामत है, इसका मतलब आमिना के लाल सलामत, बारात सलामत तो दूल्हा भी, बारात सलामत तो दूल्हा भी। अगर दूल्हा ना होता तो बारात लुट गई होती, दूल्हा ना होता तो बारात पिट गई होती। मगर जनाब वाला यहाँ तो सबका एहतराम है। देखो किस शान से जमाना चलता है आगे को। इसका मतलब आमिना का लाल कल भी सलामत। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के बोले कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो न हो तो कुछ न हो। अगर नबी को हटा लिया जाए तो जमीन की तनाबें समेट दी जाएंगी, आसमान को रुई के गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा, संसार को नष्ट कर दिया जाएगा, सारे जमाने को दरहम बरहम कर दिया जाएगा, सारी दुनिया नेस्तो नाबूद हो जाएगी। क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? क्योंकि जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। मुस्तफा सारे संसार की जान है, वो असले कायनात हैं, वो जनाबे वाला नखले कायनात हैं, नस्ले कायनात हैं, वो असले कायनात हैं, वो पूरी दुनिया की जान है। और जान है तो जहान है, और जान नहीं है तो जहान भी नहीं है। इसका मतलब जान मौजूद है, इसका मतलब जहान मौजूद है, इसका मतलब आमिना का लाल मौजूद है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये अकीदे की बात है। हमारा अकीदा, हमारा नबी जिंदा, हमारे नबी जिंदा। इसका एको कम करो। अगर तुमसे कोई ये पूछने लगे कि नबी जिंदा है तो दलील क्या है, तो तुम कहोगे सारी कायनात का सलामत। और नंबर 1, नंबर 2 उनका कलमा। क्या है आपका कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। क्या मतलब है इसका? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। क्या? जोर से बेटा। हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कोई नहीं कहता थे अल्लाह के रसूल। इसका ट्रांसलेटिव इशारा हमारे नबी कल जिंदा और आप। अच्छा, इतना समझ गए। तीसरी दलील, 1 मिनट के अंदर तवज्जो पूरी रखना। अगर दुनिया में कोई आदमी मर जाता है, कोई आदमी मर गया, तो उसकी बीवी इद्दत गुजार के किसी से भी निकाह कर सकती है। इद्दत गुजारेगी, जिससे चाहे निकाह कर ले। लेकिन हमारे नबी का जब पर्दा हुआ, दलील, हमारे नबी का जब पर्दा हुआ तो अब उनकी किसी बीवी को किसी से निकाह करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि निकाह वो करे जिसका मर गया हो। सुभान अल्लाह का यार। अरे वो निकाह करे जिसका मर गया हो। हमारा नबी तो कल भी जिंदा और आज भी जिंदा, इसीलिए उनकी बीवियां इन मुसलमानों की माओं को इजाजत नहीं है वो किसी से निकाह कर लें। हमारे नबी कल भी जिंदा और आज भी जिंदा। चौथी दलील और दूं और बात तमाम करूं। हमारे नबी जिंदा हैं, इस बात को याद रखना और नोट करना। बहुत सारे लोग शोक फैला रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। ऐसे ऐसे नाग बैठे हुए हैं जनाब वाले, एक क्लिक करते ही ईमान का खात्मा। इसीलिए अपने सुन्नी मौलवियों से, मौलाना तारिक से या हमारे इमाम साहब से, इनसे पूछ के सुना करो सोशल मीडिया पे किसे सुने और किसे ना सुने। आज इंजीनियर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, मास्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। न दाढ़ी न मूछ, न दाढ़ी न मूछ, कोट पैंट पहन के और कुरान की तफसीर हो रही। बस अंग्रेजी का एक लफ्ज बोल देते
कहते हैं अल्लाह से आप समझते हैं बड़ा काबिल है, काबिल तो शैतान भी बहुत है। अरे इंजीनियर का काम नहीं है, डॉक्टर का काम नहीं है, मास्टर का काम नहीं है। आप जब तक बैठे तभी तक ही बैठे, और मैं 40 मिनट बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत रहमदिल आदमी हूँ, मुझे भी तरस आता है, दयावान हूँ, मुझे दया आती है कि ये पूरी रात हो गई बैठे बैठे। मगर मैंने सोचा जब मैं आया हूँ तो कम से कम अपना कर्तव्य निभा दूँ, कुछ अकीदे बता दूँ। समझ में आ गई? आज बहुत सारे लोग कहते हैं नबी मादल्ला मर के मिट्टी में मिल गए, तो क्या जवाब दोगे तुम? नबी कल भी जिंदा और आज भी नबी दूल्हा है, बारात सलामत है। नबी का कलमा बता रहा है, नबी सलामत है। तीसरी क्या बात बताई? नबी की बीवियों का किसी से निकाह ना करना, इस बात की अलामत है कि नबी। और 1 मिनट एक हदीस सुन लो, है इजाजत? जब जनाबे वाला मौत का फरिश्ता जब हुजूर की तरफ चला तो मेरे रब ने फरमाया, इधर देखो, मेरे रब ने फरमाया अंदर मत जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, और वो भी जिब्राइल अकेले नहीं, 70,000 फरिश्ते हुजूर के दरबार में जाएंगे। पहले हुजूर की सलामी होगी, पहले हुजूर की। वो शहंशाह है, पूरी दुनिया के बादशाह है, राजा है मेरा महबूब, इसलिए पहले जिब्राइल सलामी देंगे, 70,000 फरिश्तों के साथ सलामी होगी, और सलामी के बाद हजरत जिब्राइल इजाज़त लेंगे आपके लिए, तो आप अंदर से बाहर से अंदर जाना, इजाज़त न मिले तो पलट के आ जाना। ये शान है हमारे नबी की। तो जनाबे वाला पहले सलामी हो गई, और सलामी के बाद हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है, अगर इजाज़त हो तो अंदर आ जाए, इजाज़त न हो तो पलट के चला जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया, कौन सा फरिश्ता? अर्ज किया, सरकार ये वो फरिश्ता है जिस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी और आज के बाद भी नहीं मांगेगा। सरकार ने फरमाया मौत का फरिश्ता है। अर्ज किया, सरकार ये वो फरिश्ता है जो बाप को बेटे से जुदा कर देता है और माँ को औलाद से जुदा कर देता है। आका ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल तुम्हारी क्या राय है, बुलाऊं या ना बुलाऊं? 1 मिनट के अंदर बात तमाम करता हूँ। बुलाऊं, मैं जो कहना चाहता हूँ वो जुमला कहना चाहता हूँ, और जनाबे वाला याद रखना, इस अकीदे का बयान अल्हम्दुलिल्लाह इमरान हनफी ने अपना मजहबी फरीजा जानकर आपके सामने पेश कर दिया। हमें जनाबे वाला जज्बात से मगलूब नहीं होना है, हर जगह अपने अकायद और अपने मिशन की बात करना है। हमारे नबी जिंदा है, इसकी दलील ये हदीस है। खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, तुम्हारी शादी अल्लाह और सबकी शादियां तुम्हारी मुबारक हों, और सब शादियों में हुजूर का जिक्र करो। अभी और बताएंगे हुजूर के जिक्र से क्या फायदे हैं जनाब वाला, और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह आपको आबाद रखे। बैठ जा बेटे, तवज्जो है आपकी। इजाजत दी, अंदर आए हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल बहुत बातें हुई, मगर आखिरी बात ये हुई कि मेरी तरफ से इजाजत है, रूह निकाल लो। मलकुल मौत ने सरकार की रूह निकाल ली। अब शुरू होती है वो बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया। सरकार की रूह सरकार की मर्जी से निकाल ली। जब रूह निकल गई सरकार की, तो ये रूह मलकुल मौत अपने नूरानी हाथों में सरकार अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के हुजूर लेके हाजिर होते हैं कि या अल्लाह इस रूह को कहाँ रख दूं? अर्श पे, आला इल्लीयीन में, जन्नत में। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इस रूह को ऐसी जगह पे रखो इजराइल जहां ये थी उससे बेहतर मकाम हो। कहाँ रखो? जन्नत में। जन्नत में तो इनके गुलामों की रूह है, आला इल्लीयीन में गुलामों की रूह है। कि अर्श पर रख दो, कि अर्श पर तो इनके पाँव आ चुके हैं, तो फिर कहाँ रखी जाए इनकी रूह? बस ये आखिरी जुमला। तो जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, ए मौत के फरिश्ते, जब तुझे कहीं उससे आला जगह
नजर नहीं आती तो जा, मेरा हुक्म है इस रूह वाला को ले जा और मेरे महबूब के जिस्म में दोबारा उतार दे। हजरत मलकुल मौत उस रूह को लेके आए और मेरे नबी के जिस्म में दोबारा उस रूह को डाल दिया गया। बरेली वाले बोले तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ये हमारे नबी हैं, कल भी सलामत थे, आज भी सलामत है। तो जनाब शादियों की महफिलें बताती हैं कि आमिना का लाल सलामत है, बाग बताते हैं आमिना का लाल सलामत है, जमीन का फैलाव बताता है आमिना का लाल सलामत है, आसमान की वुसअत बताती है कि आसमान मुस्तफा जाने रहमत सलामत है, सारी दुनिया के पुरकैफ दिलरुबा नजारे बताते हैं कि आमिना का लाल सलामत है। तो ये तो जनाब वाला एक बात हो गई इस मजलिस पाक में। अब इसके बाद की बात ये है, परेशान तो नहीं हो अभी? हमारा नबी यहाँ भी दूल्हा, जोर से कहिए, अरे यहाँ के भी दूल्हा वही हैं और मैदाने हम और तुम नहीं, दूल्हा यहाँ भी वही दूल्हा। अब वहां कैसे? अगर तुम 2 मिनट की इजाजत दो तो मैं वहां का एक मंजर खींचता हूं। 5 मिनट की इजाजत है मैं, मगर 1.5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर उस मंजर को खींचता हूं, बाकी बात बाद में करेंगे। 5 मिनट नहीं, कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह। अरे 1:05 तो हो ही गए। अब ये प्रोग्राम आपका चलना है 1:30 बजे तक, 25 मिनट रह गए। 2 बजे तक कर दें, 2 बजे तक कर दें, सुभान अल्लाह। तो 2 बजे तक करेंगे नहीं, लेकिन अभी बातें तो बहुत है करने की, मगर 2 मिनट आप इस हकीकत को समझिए। क्या यहाँ के भी दूल्हा वही और वहां के भी दूल्हा। वहां का एक मंजर आपके सामने एक हदीस की रोशनी में पेश करता हूं, और ये हदीस है मुस्लिम शरीफ की, किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ। मैदान में सजा होगा जनाब वाला, जमीन 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 जनाब वाला तांबे की होगी और सूरज तुम्हारे सरों के ऊपर होगा और जनाब अल्लाह का जलाल जोश में होगा। 2 मिनट लेना चाहूँगा, अल्लाह का जलाल जोश में होगा। हजरत मोहतरम, लोग पसीनों की नदियाँ बह गई होंगी, इतना पसीना के जनाब वाला, इतना पसीना और ऐसा पसीना, अल्लाह अकबर, किसी की पिंडलियों तक, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की रानों तक, किसी के पेट तक, किसी के गले तक, और कोई डूब रहा होगा पसीने में। पहले वाले भी, नबी से पहले वाले भी होंगे, नबी के बाद वाले भी होंगे, वहाबी भी होंगे, देवबंदी भी होंगे, जनाब राफजी भी होंगे, खारजी भी होंगे, शिया भी होंगे, यहूदी भी होंगे, ईसाई भी होंगे, जनाब वाला पहले उम्मती भी होंगे और नबी के जनाब वाला बाद में आने वाले पूरी दुनिया के लोग होंगे। नेता भी होंगे, मिनिस्टर भी होंगे, जनता भी होगी और जनाब वाला गुनाहगार भी होंगे, नेकोकार भी होंगे, मुत्तकी भी होंगे, पारसा परहेजगार भी होंगे, रामा बुजुर्ग वाले भी होंगे, मदाले वाले भी होंगे और जनाब वाला पूरी दुनिया एक जमाना होगा, अल्लाह का जलाल जोश में होगा। कुछ लोग आपस में ये चर्चा करेंगे कि आज नहीं चले जाए, मगर हिसाब किताब से शुरू हो जाए, अल्लाह ताला का जलाल अगर जोश में होगा तो हिसाब किताब मकसद क्या है कि आज सारा जमाना मेरे नबी की अजमत को देखे, सारे जमाने को एहसास हो जाए कि इस पूरी बज़्म महशर का अगर कोई दूल्हा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आज किसी की नहीं चलेगी, आज चलेगी तो मोहम्मद की। सर ऊंचा तो मोहम्मद का, कुर्सी ऊंची तो मोहम्मद की, बात ऊंची तो मोहम्मद की, जात ऊंची तो मोहम्मद की। आज अगर अल्लाह के दरबार में किसी की सिफारिश कबूल होगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी बात करूं तो लंबा टाइम हो, बस इतना कहूं कि 1,24,000 नबियों और रसूलों के दरबारों में कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों के दरबारों में चुपके से खाना खा लीजिए, क्योंकि अब करीब है टाइम, खाना खा लीजिए। आपने खाना नहीं खाया, बड़ी कुर्बानी देते हैं अंसार कादरी भाई। और ये इजलास के जो नाज़िम होते हैं, मौलाना तारिक साहब, थोड़ा सा टाइम और लेंगे। अंसार कादरी भाई बड़ी मोहब्बत से निज़ामत करें और जहाँ भी निज़ामत करेंगे
अलग ही कलर होगा पूरे जलसे का। अब आप देख लीजिए ना, ये कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, इतनी बड़ी रात की कॉन्फ्रेंस। एक रात में मैंने कल 2 तकरीरें करी, 2 एक ही रात में, और दोनों बड़ी कॉन्फ्रेंसों में वो होती हैं कॉन्फ्रेंसें 10-10 हजार 20-20 हजार का मजमा, और पीलीभीत में तो मेरे ख्याल में 40-50 हजार का मजमा। और इसी टाइम मेरी तकरीर हुई सुबह के 4 बजे, वहां एक जगह हुई 2 बजे। वो होती है कॉन्फ्रेंस। मगर इस जैसी मजलिस में भी इतनी बरकत का छा जाना, सुभान अल्लाह, ये अंसार कादरी की पुरखुलूस निजामत का नतीजा है। और फैजान राय और इनके घर वालों के दिलों की मोहब्बत और खुलूस का रिजल्ट है। अल्लाह ताला हुजूर के सदके तुम्हारी उम्र में बरकत